Welcome to you in 12th lecture of solutions. Today's topics are one-top equation for osmotic pressure, the molecular weight of polymers by osmotic pressure, and some numericals on osmotic pressure. First we go one-top equation for osmotic pressure. It is the first topic. What is the one-top equation? one-top ने एक्सपेरिमेंटली जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन दी है, दैट इज कॉल्ड one-top इक्वेशन. क्लियर? दिस one-top इक्वेशन इज osmotic pressure is equal to CRT. क्लियर? ये पाई जो सिंबल है आपका, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर. Hence you know what is C. Hence C is molar concentration and equal to N by V. That is C is equal to N by V, where N is the number of moles and V is the volume of solution in liter. Clear? You replace this value in equation number 1. So from equation number 1 we get osmotic pressure is equal to N by V RT, or you can write in this way, pi V is equal to nRT. Just like gas equation, PV is equal to nRT. Actually में one-top साहब ने जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को गैस प्रेशर से उन्होंने कंपेयर किया था. उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया कि जिस प्रकार जब किसी कंटेनर में हम लोग गैस भरते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल में स्ट्राइक करते हैं और गैस प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं. इन द सेम वे सॉल्यूट पार्टिकल स्ट्राइक ऑन द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड प्रोड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर. तो उसी इक्वेशन को लेकर के चला गया है गैस इक्वेशन को लेकर. Clear? Now again, hence N is the number of moles. Again, it's taken second equation. N is number of moles of solute. It's also written in this way. You know, number of moles is equal to gram weight upon molecular weight. Clear? जनरली यहाँ पर इसको हम लोग B से लिखते हैं. एक सिंपली हम लोग W upon M से भी लिख सकते हैं. ठीक? In NCERT it is written W2 upon M2. 2 stands for solute. B stands for solute. Clear? Now, again, from equation 2 में इस वैल्यू को रिप्लेस करें आप, then we get IV is equal to WB upon MB into RT. Clear? This equation is commonly written in this way, IV is equal to WRT upon M. Clear? W is gram weight of solute. M is the molar mass of solute. Clear? Hence, where WV gram weight और ग्राम मास
of solute and mv or m molar mass of solute. Clear? What is the capital T? Their capital T is Kelvin temperature. Clear? This temperature expressed in the Kelvin, also called absolute temperature. And what is the R? R is gas constant. Clear? And its value is taken 0.082. ठीक, वैसे 821 होता है. लीटर, एटमॉस्फेयर, Kelvin inverse, mole inverse. Clear? This value is taken when volume is taken in the liter and pressure is taken in the atmospheric pressure or in bar, BAR. It is also 8.31 joule Kelvin inverse per mole. Hence, this value is taken when pressure is taken in a Newton meter square. Clear? And volume is taken in cube meter. ठीक, उस समय हम लोग इस वैल्यू को यहां पर लेकर के चलेंगे, ध्यान रखिएगा. क्लियर हो गई बात? अब इन फॉर्मूलों के हिसाब से तो हम लोगों ने जो फॉर्मूले पाए वो क्या पाए थे? Y is equal to CRT और pi is equal to C क्या था? Concentration, that is number of moles upon volume RT. Clear? और number of moles क्या था? Gram weight upon molecular weight, that is W upon M into RT upon V. ये हम लोगों ने फॉर्मूले अभी तक यहाँ पर पाए. इनको हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे. क्लियर? अब न्यूमेरिकल से पहले एक बहुत छोटी सी चीज देख लेते हैं हम लोग. यहां अभी हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला. अब यदि मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना हो सॉल्यूट के लिए, m will be WRT upon y. ये सब वैल्यूज हमको मालूम हो तो हम लोग यहां पर मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर हो गया? अब देखिए, मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने के लिए हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वहां आपने पढ़ा था फॉर्मूला बॉइलिंग पॉइंट के लिए Kb इंटू मोलैलिटी. क्लियर? मोलैलिटी क्या था आपका? उसके लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला रखा था. क्लियर? यहां से भी हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते थे. क्लियर? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में यहां पर TF और KF हो जाएगा. मगर सभी मेथड्स में जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है इसको हम लोग अधिक प्रेफर करते हैं, खास तौर से पॉलीमर्स के लिए. लाइक प्रोटीन है, ठीक है ना, जो
आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनके मोलर मास फाइंड करने के लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं, उसके रीजंस क्या हैं, आइए वो जान लेते हैं। ठीक। तो मैंने बताया आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड for determination of molar masses of polymers like proteins। क्लियर? क्यों? और भी जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं and other macromolecules। ठीक, उसका रीजन क्या है, आइए वो देखते हैं। ड्यू टू गिवन रीजंस, तो एक्चुअली में ये प्रोटीन्स है, अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनके लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, सॉरी मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का सहारा लेते हैं। क्यों, आइए वो देखते हैं क्या उसका रीजन है। पहला नंबर हमारे पास में है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे पास में, ठीक, इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, इट कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं। और यदि हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हमें बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा। और मैक्सिमम जो प्रोटीन्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो हाई टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं, तो उनके लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, और उसकी जब बजाय जो है उसके स्थान पर ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड करना इजी होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक, प्रोटीन्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स आर मोस्टली अनस्टेबल at high temperature। So measurement of delta TB is difficult। फाइंड कर सकते हैं मगर उसके लिए थोड़ा सा टिपिकल मेथड होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना ज्यादा आसान होता है। ये एक पहला रीजन है हमारे पास। ठीक, आइए देखते हैं सेकंड रीजन क्या है। अगली बात, यहां ये फॉर्मूला था MC इज द मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज मोलरिटी। मोलरिटी, ठीक, यहां ध्यान रखेंगे, hence molarity is used instead of molality। आपके एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में आपको याद होगा यहां पर जो है मोलैलिटी का यूज हुआ था।
एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट लेंगे तो यहाँ बी लिख देंगे और डेफिनेशन एफ लिख देंगे। मोलरिटी में क्या होता है, गिवन वॉल्यूम में सॉल्यूशन बनाना होता है। यहां पर सॉल्वेंट के एक सर्टेन मास में हमें सॉल्यूशन बनाना होता है, ठीक। ध्यान रखें, गिवन वॉल्यूम में सॉल्यूशन बनाना, क्लियर। सॉल्वेंट के गिवन मास में सॉल्यूशन बनाने की अपेक्षा अधिक इजी, इसलिए यह मेथड अधिक टफ है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन is more comfortable in given volume rather in given mass of सॉल्वेंट, इसलिए भी ये मेथड आपका ज्यादा इजी है। एक अगला रीजन भी है, थर्ड रीजन, आइए उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्लियर, थर्ड रीजन क्या है, आइए हम लोग वो देखते हैं। जो होते हैं पॉलीमर्स हमारे पास में, फॉर पॉलीमर्स, ठीक, जो ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू होती है बहुत लार्ज होती है, उनको इजीली हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यूज आर क्वाइट लार्ज, ठीक है ना। देन बल्कि और ये भी कह ले एंड मिजरेबल होती हैं। क्लियर, even for डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इनकी जो डेल्टा टी वैल्यू है आपकी, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेप्रेशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो बहुत ही कम वैल्यू होती है, उसका मेजरमेंट मुश्किल होता है, ठीक। बट डेल्टा टी वैल्यूज आर वेरी स्मॉल, ठीक, लाइक जैसे 0.00001 इस प्रकार से, ठीक है ना। केल्विन में इस प्रकार से बहुत कम वैल्यूज होती हैं, ठीक, फॉर विच measurement is difficult, clear। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पर। सम न्यूमेरिकल्स, आइए देखते हैं। देयर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो देखते हैं। फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% यूरिया mass by volume at 27 degrees centigrade. R value is given 0.0821 liter atmosphere Kelvin inverse per mole inverse. इसको फाइंड करना है। First you find molar mass, hence molar mass
ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। ये फाइंड करिए। N के लिए 14, H के लिए 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, it comes 60. Clear? Now given to you 5% urea, mass by volume, it means 5 gram urea present in 100 ml solution. Clear? So gram weight is 5 gram and volume is given 100 milliliter. Now use formula YV is equal to W upon MRT. Put the values. What is the value of V? 100 milliliter. You change the liter, so you divide by 1000. Now W is given 5, molecular mass is given 60, R is given 0.0821. Clear? And टेम्परेचर आपको यहाँ पर सेंटीग्रेड में गिवन है, इसको आपको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो T is equal to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, so 27 plus 273 Kelvin, it comes 300 Kelvin. Put this value 300. Clear? इसको सॉल्व कर लें। These zeros are cancelled. This zero also cancelled by this. What comes? देखें 6 ये आपका डिवाइड हो रहा है, 6 5 30, so 5 into 50 into 0.0821, ये ATM में आपका पाई की वैल्यू आ जाएगी। ये ठीक, इस वैल्यू को अपना मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक ना, मे बी अबाउट 20 पॉइंट समथिंग आ रही है, ठीक, शायद ये 20.5 के आसपास आ रही है ATM। क्लियर? इसको अपने कैलकुलेट कर लीजिए। Now we try another numerical. Question number 2. ठीक है? Find osmotic pressure of N/20 glucose solution at 127 डिग्री सेंटीग्रेड। R की वैल्यू जो नॉर्मल है वो रखेंगे। फर्स्ट टू फाइंड मोलर मास। मोलर मास फाइंड करिए ऑफ ग्लूकोज। यू नो ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6 फॉर कार्बन 12, फॉर ऑक्सीजन 16, फॉर H1 you got 180. It's molar mass. Clear? Now concentration is given M/20, that is 1/20 mole per liter. It is given in your question. Temperature is given 127 degree centigrade, that's 273 in Kelvin, it is 400 Kelvin. Now find out osmotic pressure. What is the formula? CRT. Put all values. This is 1/20, 0.0821, and या कभी आप 0.82 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0.0821 भी लिख सकते हैं, और T is given 400. It come in ATM. It's very easy.
0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा और उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ रहा है। ठीक, ये शायद आपका ये 0 कैंसिल आपका 20 है तो 0.0821 इंटू 20 ATM करके आपका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें तो बहुत इजी है भाई, कहने के हैं। ठीक है, let's go another question. Question number 3 also. Find osmotic pressure of 100 gram per liter सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। सॉल्यूशन एट 69 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? दे आर गिवन 69 डिग्री सेंटीग्रेड। ये यहां पर आप सबसे पहले फाइंड करें मोलर मास। मोलर मास ऑफ सुक्रोज। कार्बन के लिए 12 रखेंगे, H के लिए 1, O के लिए 11, इट कम्स 342। ठीक, इसको फाइंड आउट करेंगे पहले आप स्वयं तब। नाउ their gram weight is given 100 gram, volume is given 1 liter. Clear? Now temperature is given 69 degree centigrade. You add 273 Kelvin. जरा फाइंड करें कितना आपका आ रहा है। 93 12 आ जाएगा, 1 कैरी and it comes 342 Kelvin. Clear? Now use the formula Y is equal to W upon M into RT upon V. Put the values. Gram weight is given 100 and molar mass is given 342. R is given normal value 82 या 821 कर लें, और T की वैल्यू कितनी है? दिस इज 342 एंड इट इज आल्सो 342। ये तो बहुत ही सॉरी, वॉल्यूम आपका गिवन है 1 लीटर, दिस इज गिवन। ये वैल्यूज आपकी ऐसे ही कैंसिल हो गई। ये तो बहुत इजी है भाई। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये शायद 8.21 एटमॉस्फेयर या बार में आ जाए। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप बार बार ट्राई करें और आगे न्यूमेरिकल्स ट्राई करें, फिर आगे भी हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसको आप समझें, एंजॉय करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो को एंजॉय करें। ओके।